Good morning, children. Today we are going to start chapter number 5 from your grammar book, that is Adjectives and Kinds of Adjectives. So, what is the meaning of adjectives? The words which describe a noun are called adjectives. वो words जो noun के बारे में कुछ बताते हैं, they are called adjectives. And you have already done this concept with the name of describing words in second standard as well. Okay, so let's have a look कि आखिर ये होते क्या है. Now in this picture you can see many nouns are there, many objects and people are there. तो इन सभी की कुछ ना कुछ क्वालिटी है. For example, let's take the first noun, that is mouse. Now this mouse is small. Then we have an elephant. The elephant is big. In the same line you can see two sandals are there. एक सैंडल की हील हाई है, दूसरे की लो है. Then we have two pencils. One pencil is long and the other one is short. Then we have two people over here. Two persons are here. So the man is tall but the child is short. Then we have two ladies. One is thin, patli hai. Another one is fat. Two pencils. One pencil is thin, another one is thick. Then we have two things which are eatable. कुछ खाने की चीज़ें हैं. First is in liquid form, but जो दूसरी है वो thick है, वो गाढ़ी है. Then there are two ties. So one tie is narrow. Narrow means जिसमें ज़्यादा जगह नहीं होती, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती जो. Okay, so the first one is narrow and the second is wide. Wide means ज़्यादा खुली होना कोई चीज़. Now for example, some of you live in an area जहाँ पे जो roads हैं वो एकदम नैरो सी होती हैं, पतली होती हैं, पर कुछ लोग रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर रोड्स थोड़ी वाइड, थोड़ी खुली ज़्यादा होती हैं. ओके, सो रोड्स कैन बी नैरो और वाइड. देन इज ब्लंट एंड शार्प. वो चीज़ जो तीखी होती है दैट इज़ कॉल्ड शार्प. वो चीज़ जो तीखी नहीं होती, right, that is called blunt. So these are some of the qualities, some of the things which we can tell about a noun, and these words are called adjectives या फिर describing words. Further, we have different types of adjectives. We have six adjectives in your book, which are adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, demonstrative adjective, interrogative adjective, and possessive adjective. So let's take them one by one. The first is adjective of quality. Now, if you can see here, Ashok is a kind boy. ठीक है, अगर हम बात करें इस बच्चे की तो इसकी क्या क्वालिटी बता रहे हैं कि वो काइंड है, वो दयालु है. द नेक्स्ट वन इज ही हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन. अब यहाँ पर हम एक मैन की बात कर रहे हैं, एक आदमी की बात कर रहे हैं जो कि ब्लाइंड है. तो उसके बारे में हमने ये बताया कि वो ब्लाइंड है, तो ये उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. In the third sentence, you can see a fox. The clever fox walked away with the cheese. Okay, so fox की क्या क्वालिटी बताई है, उसके बारे में क्या बताया है हमने, that the fox is clever. Clever means चालाक. So in this slide, you can see three adjectives: kind, blind, and clever. So these are the adjectives of quality. ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं जिसमें आप किसी की कोई क्वालिटी, कोई उसकी खासियत बताते हो. दे टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो होते हैं हमें किसी पर्सन की काइंड, किसी एनिमल की काइंड या फिर किसी चीज़ की काइंड बताते हैं. टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ अ पर्सन, एनिमल और अ थिंग. एंड दे इंक्लूड कलर, साइज, शेप एट्सेट्रा. और ये हमें किसी का कलर, उसका साइज, शेप एट्सेट्रा ये भी बता सकते हैं. ऑल राइट. Now in this picture again you can see so many adjectives are there. In the left side you can see thick, thin, strong, angry, worried, ugly, tiny, tired, surprised, thirsty, excited, afraid. ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो हमें किसी के बारे में कुछ बताते हैं. ओके, टुवर्ड्स द राइट साइड आप देख सकते हो एप्पल के बारे में क्या क्या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं. अगर मैं सिर्फ एप्पल एज अ नाउन लूँ, सो एन एप्पल कैन बी क्रिस्प,
crunchy, smooth, rough, round, green, shiny, fresh, sweet, sour और red. तो ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वी कैन यूज़ फॉर एन एप्पल. सिमिलरली आप एक नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हो. उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ आप बता सकते हैं विच आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. Now, in your book, you have exercise number 1. I have solved 5 sentences for you. Rest you will solve. Exercise जो है आप खुद complete करोगे बाकी. So, underline the adjectives of quality and write the nouns they describe. आपको क्या करना है? Adjectives of quality को underline करना है. जहाँ पर आपको किसी चीज़ की quality बताई गई है, उस quality को आपने underline करना है and write the nouns they describe. और जो nouns हैं वो क्वालिटी किस नाउन की है उसको आपने लिखना है. ओके, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. फर्स्ट ये करना है एंड सेकंड राइट द नाउन्स दे डिस्क्राइब. वो जो एडजेक्टिव्स हैं वो कौन से नाउन के बारे में हैं दैट यू हैव टू राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. So Akbar was a wise king. In this sentence, wise is the adjective of quality. Wise means समझदार होना. और ये कौन से noun से पहले आ रहा है? Adjectives जो होते हैं वो noun से पहले आते हैं, right? So wise is explaining about the king. So the king is noun. London is a large and busy city. So बेटा this sentence needs a correction. आपकी book में large के बाद एक comma दिया हुआ है. So you have to remove that comma and you have to write and. Large and busy city. Okay. So London is a large and busy city. So we have two qualities here, large and busy. So we'll underline large and busy. And ये कौन से noun से पहले आ रहे हैं? They are coming before city. So city is the noun here. ये city को describe कर रहे हैं. The third sentence is Rajputs are brave. So Rajputs is a special category of people. एक लोगों की category को Rajputs कहा जाता है. So they are noun, right? So are brave. Brave means बहादुर होना. So बहादुर होना या brave, it is a quality. और ये quality किसकी बताई गई है? Rajputs के बारे में. The rose is a beautiful flower. So we have been told rose जो कि एक noun है वो एक beautiful flower है. So quality is beautiful. Adjective of quality is beautiful. और ये beautiful कौन से noun से पहले आया है? That is flower. So we'll write flower because flower को describe कर रहा है. Number 5 is lions are strong and fierce animals. कि lions जो होते हैं वो strong होते हैं और fierce होते हैं. Fierce means कि डरावने होते हैं, बहुत aggressive होते हैं. They can attack us anytime. So lions are strong and fierce animals. Strong means जिसमें दम होता है, strength होती है, ताकत होती है. So the qualities you can see clearly, strong and fierce are the two qualities. और ये कौन से noun से पहले आ रहे हैं? They come before animals. So animals is the noun जिसको ये describe कर रहे हैं. Alright. Now beta second exercise जो है that you will do by yourself because it's a very simple and easy exercise. It can be solved by you, but I'll share the answer key tomorrow for this, right? Moving on to the next adjective, which is adjective of quantity. So let's have some examples first of all. He has had enough exercise. कि उसने बहुत एक्सरसाइज कर ली है. बट यहाँ पर आप देखो एक्सरसाइज कितनी की है, कम या ज़्यादा. हमें एक नंबर के बारे में आइडिया नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, राइट? तो दैट मीन्स दिस इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. यहाँ पर जहाँ पर एक नंबर के बारे में आइडिया नहीं हो पा रहा वहाँ सिंपली हमने इनफ लिखा है कि बहुत की है. सो दिस इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सेकेंड वन इज़ ही डिड नॉट ईट एनी राइस. उसने बिल्कुल भी चावल नहीं खाए. सो राइस के पहले है एनी इज़ द एडजेक्टिव. बट ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमें बता रहा है कि कितने चावलों की बात हुई लेकिन कोई नंबर नहीं है. ठीक है, बता ज़रूर रहा है कि बिल्कुल भी नहीं खाए लेकिन कितने चावल नहीं खाए, कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दिया हमें. नेक्स्ट इज देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग. सो देयर इज़ लिटिल वाटर. पानी के बारे में बताया है कि कम पानी है जग में. सो कितना पानी है बता दिया कि थोड़ा सा पानी है. बट कैन दैट बी काउंटेड? कैन वी काउंट द ड्रॉप्स ऑफ
वाटर, उस जग में कितनी ड्रॉप्स हैं पानी की, क्या हम काउंट कर सकते हैं? सो दैट इज़ वाई ये जो तीन एग्जाम्पल्स हमने की, इनफ, एनी और लिटिल, दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, बिकॉज इनके लिखने के बावजूद भी हमें एक एग्जैक्ट नंबर का आइडिया नहीं हो रहा, और the main thing is that they are used for uncountable things. Adjectives of quantity are used for uncountable things जिनको हम count नहीं कर सकते. For example, rice. You cannot count कि rice के कितने दाने हैं आपके पास, कितनी आपके bowl में, आपके कटोरे में या plate में कितने दाने आपके पास चावल हो के हैं. It is impossible. It's very difficult to count. Then number of hair you have. आपके सर पे कितने बाल हैं? Can you count that? No. पानी में कितनी ड्रॉप्स हैं? वी कैन नॉट काउंट दैट. मिल्क में कितनी ड्रॉप्स हैं? वी कैन नॉट काउंट दैट, राइट? सो जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं उनके लिए जो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. हमें एक एग्जैक्ट फिगर पता नहीं चलता, एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलता. The second exercise, no, the third exercise, underline the adjectives of quantity in the sentences. आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को अंडरलाइन करना है. लेट्स टेक द फर्स्ट वन. देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हर कमिंग फर्स्ट इन क्लास. कि क्लास में उसके फर्स्ट आने की बहुत कम उम्मीद है. लिटिल होप, कम उम्मीद. ऑलराइट, सो लिटिल से पता चल रहा है कि कम, राइट? सो कम इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हियर. और ये किसके लिए यूज़ किया गया है? इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर होप. Hope is a noun, but filhal we need not to mention anything about the noun here. We just need to underline the adjective of quantity, which is little. Next is Hari gave us a pound of sweets. Hari ने हमें एक pound of sweets दिया. कितनी sweets थी? Pound of sweets. But can you count कि उस pound में कितनी sweets थी? ओके, देर इज़ नो फिक्स्ड अमाउंट कि एक पाउंड में इतनी ही चीज़ें आ सकती हैं. नो, दैट इज़ वाई दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. थर्ड वन इज़ ही हैज़ नॉट डन मच ऑफ एक्सरसाइज. उसने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की है. नहीं की है उसने ज़्यादा एक्सरसाइज. सो मच का मतलब है ज़्यादा, और कौन से नाउन से पहले आ रहा है? ये आ रहा है एक्सरसाइज के पहले. सो हमें बता रहा है कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की है. सो ज़्यादा एक्सरसाइज से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक्सरसाइज कितनी है, राइट? एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, अंदाजे से बता रहा है कि ज़्यादा नहीं करी है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है. सो दिस इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फोर्थ सेंटेंस यू विल नॉट डू बच्चे. प्लीज़ यू कैन यू नीड टू कट दिस सेंटेंस इन द बुक एज वेल. नंबर 5 इज़ आई एट सम राइस. मैंने कुछ चावल खाए. सो राइस इज़ द नाउन हेयर, पर राइस के बारे में क्या बताया है? सम, कुछ राइस. अगेन वी कैन नॉट काउंट राइस, तो दिस इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ऑलराइट, फर्दर जो बाकी सेंटेंसेस हैं दोज यू विल डू बाय योर सेल्फ.